Dear students, today we will read the poem lesson Childhood, composed by Marcus Nathan. In this poem, the poet Marcus Nathan wonders when and where he lost his childhood. कवि आश्चर्य करता है कि उसने अपना बचपन कहाँ खो दिया. In this quest to find the moment he grew up, Marcus highlights the innocence and faith he lost even as he gained rational individuality. In this poem, the poet laments over the loss of his childhood. कवि अपने बचपन के खोने पर दुखी होता है. It was a time when he sincerely believed that there is a heaven and a hell. It was a time when he believed that the adults really mean what they said. He believed that people really loved one another when they talked and preached of love. It was a time when he thought himself as one among others. यह ऐसा समय था जब वह सचमुच ऐसा माना करता था कि यहाँ स्वर्ग और नरक होते हैं. यह वो समय था जब वह ऐसा मानता था कि वयस्क लोग जो भी कहते हैं सच कहते हैं. वह मानता था कि लोग सचमुच एक दूसरे से प्यार करते थे जब वह प्यार की बातें करते थे और प्यार करने का उपदेश देते थे. वह ऐसा समय था जब वह स्वयं को दूसरों में ही एक माना करता था. It was a time when he thought himself as one among others. He didn't think he was in any way different. But now all that innocence is gone. Now he thinks that heaven and hell are no real places. Now he sees people talking of love and preaching love, but he sees that they don't act lovingly. Now he is conscious of his own separate identity and feels himself different from others. The poet wonders when and where he lost his childhood. कभी आश्चर्य करता है कि उसने अपना बचपन कब और कहां खो दिया. He can only say that it has gone to some forgotten place that is hidden in the face of an infant. केवल वो आश्चर्य करता है कि उसका बचपन कहीं ऐसी भूली हुई जगह पर चली गई है, अज्ञात जगह पर, और शायद उसका बचपन किसी नन्हे शिशु के चेहरे में निहित है. About Marcus Nathan. Marcus Nathan was a Norwegian poet. He wrote a poem, Childhood. In this poem, he tries to find out when he lost his childhood. Through his poem, he wrote that people do not live the lives that they preach. Theme of the poem. In this poem, the poet thinks over his lost childhood. इस कविता में कवि अपने खोए हुए बचपन को याद करता है. He wonders about the moment where he lost the innocence and realized that the world is not what he seemed it to be. वो आश्चर्य करता है उस क्षण को लेकर के कि उसका बचपन कब और कहां खो गया, कहां चला गया, और वो ये महसूस करता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा वो दिखाती है. He recalls when his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him. वो याद करता है उसके विचार बदल जाते हैं और वो ये महसूस करता है लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, वास्तव में वो वैसे नहीं है जैसा वो उपदेश देते हैं. He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place, और अंत में उस विचार को मानता है कि उसका बचपन कहीं किसी अज्ञात जगह पर चली गई है, एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट फेथ इनफैक्ट, और उसका बचपन जो है वो किसी छोटे से नन्हे से शिशु के चेहरे में निहित हो गई है, उसमें ही वो देखता है. Childhood summary. Now we will understand the summary. In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. कवि आश्चर्य करता है कि उसने कब और अपने कहां पे अपने बचपन को खो दिया, और जो उसकी मासूमियत थी वो कब उसके अंदर से चली गई. He became conscious that he no longer sees the world as he did earlier. वो चैतन्य हो गया है
और वो दुनिया को उन नजरों से नहीं देखता जिनको वो पहले जिन नजरों से वो देखा करता था, जो समझता था। एंड ही कैन सेंस द हिपोक्रेसी इन पीपल, और वो लोगों के अंदर के ढोंग को साफ देख सकता है। ही रिकॉल्ड मेनी इंस्टेंसेस इन हिज लाइफ व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, और वो फिर याद करता है बहुत से ऐसे क्षणों को जीवन में कि कब उसने अपने बचपन को खो दिया, उसका बचपन कहाँ चला गया, कब उसने खो दिया। He wondered if it was the day he ceased to be 11, और वो आश्चर्य करता है, सोचता है कि क्या वो दिन था जब वो 11 वर्ष का हुआ था। और ये realized that hell and heaven didn't exist in the world, या उसने अपना बचपन तब खो दिया जब उसे एहसास हुआ कि ये हेल और हेवन, ये स्वर्ग और नर्क नामक जगहें इस दुनिया में नहीं है, वो है ही नहीं। एंड नो वन कुड फाइंड देम इन द जियोग्राफी, कोई भी उन्हें इस भूमंडल पर इस जगह को नहीं ढूंढ सकता, ऐसी जगह है ही नहीं। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी व्हेन ही रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी, और दूसरा वो क्षण, और वो बात करता है उस संभावना की जब उसे महसूस होता है कि ये एडल्ट्स जो हैं वैसे नहीं है जैसे वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड दे आर हिपोक्राइट्स, और वे ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट देयर एक्शंस डोंट से सो, वे प्यार की बातें तो करते हैं, उपदेश देते हैं, सिखाते हैं कि प्यार से रहिए, लेकिन उनकी क्रियाओं में ऐसा प्रतीत नहीं होता, जैसा वो कहते हैं वैसा करते नहीं। Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts? या वो दिन था जब वो बचपन उसका चला गया, जब उसे एहसास हुआ उसका मस्तिष्क जो है उसका अपना है, उसका मस्तिष्क अपने तरीके से सोचता है, वो दूसरों की तरह से नहीं सोचता है। एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज ओन थॉट्स, और उसका मस्तिष्क जो है अपने विचारों को उत्पन्न करने में समर्थ है, उसके अपने विचार हैं। No one could own that, and he is an individual with his particular personality. और कोई, सबका अपना अपना पर्सनैलिटी है, कोई किसी के पर्सनैलिटी को धारण नहीं करता, वह भी एक व्यक्तिगत, उसका व्यक्तिगत जीवन है, उसकी एक पर्सनैलिटी है और एक खास तरह की पर्सनैलिटी है, विचार है। इन द लास्ट स्टैंजा he talks about the whereabouts of his childhood, और अंतिम स्टैंजा में वो बातें करता है कि उसका बचपन कहाँ चला गया, कहाँ पे होगा, कहाँ पे हो सकता है। he concludes that it had gone to some forgotten place, और वो अंत में निष्कर्ष देता है कि उसका बचपन किसी अज्ञात जगह पे चली गई है, भूली बिसरी जगह पे। एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ एन इन्फेंट, अगर उसके बचपन को ढूंढना है तो वो किसी शिशु के चेहरे में ही मिलेगी, दिखाई देगी, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है। Now we will read the poem and understand it. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be? Was that the day? In the above lines, the poet wonders about when his childhood came to an end. He asked himself, was it the day he was no longer 11 years old? वो अपने आप से स्वयं से पूछता है, क्या उसका बचपन उस दिन चला गया जिस दिन वो 11 वर्ष का हुआ था? स्वयं से पूछता है, was it the day when he realized that hell and heaven existed? या उसका बचपन उस दिन चला गया था जब उसे एहसास हुआ कि इस पृथ्वी पर स्वर्ग और नर्क नामक कोई जगह नहीं है, इस भूमंडल पर ऐसी जगह है ही नहीं, ये केवल बातें हैं। एंड येट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी और ऑन द मैप, जिसे भूमंडल पर नहीं पाया जा सकता या किसी भी नक्शे में ऐसी जगह है ही नहीं। ही रियलाइज्ड दे आर इमेजिनरी प्लेसेस दैट एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। उसे एहसास होता है इस बात का कि वे एक काल्पनिक जगह है और वास्तव में इस दुनिया में ऐसी जगह है ही नहीं है। क्या उस दिन उसका बचपन उसके पास से चला गया था जब उसे इस बात का एहसास हो गया था? Dear students, understand these lines. Stanza 2. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love,
but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया था जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये वयस्क लोग, ये बड़े लोग जैसा दिखाते हैं वैसे हैं नहीं। उनकी क्रिया बिल्कुल विपरीत है जिन बातों को वो हमें उपदेश देते हैं। They talked of love and preached of love. वे प्यार की बातें तो करते हैं, हमें उपदेश देते हैं, सिखाते हैं कि आप प्यार से रहिए, प्यार करिए, प्यार ही जीवन है। But did not act so lovingly. लेकिन इतने ही प्यारे ढंग से वे अपनी क्रियाओं को नहीं करते। क्रिया में वैसे नहीं है, वे केवल बातें ही करते हैं। Was that the day? कभी आश्चर्य करता है कि क्या जिस दिन उसे इस बात की जानकारी हुई कि ये वयस्क लोग जैसा दिखाते हैं वैसे नहीं है, वे बातें तो करते हैं लेकिन वास्तव में उनकी क्रिया बिल्कुल विपरीत है। जिस दिन मैंने ये जाना, क्या उसी दिन मेरा बचपन मेरे अंदर से चला गया था? In the above stanza, the poet again repeats the same question about when did his childhood go. He wonders about the day when he started seeing the world with a new perception that adults are hypocrites. वयस्क लोग ढोंगी हैं and are not how they seem to be. और जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। The adults who talked of love and preached of love and yet never behaved so lovingly. बातें तो करते हैं प्यार की लेकिन अपने व्यवहार से वो प्यार दिखाते नहीं। They are double faced in reality. वास्तव में उनका दोहरा व्यक्तित्व है। Was that the day when his childhood go? क्या वो दिन था जिस दिन उसका बचपन चला गया था, जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वयस्क लोग ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, हमसे कहते तो हैं लेकिन अपनी क्रिया से वैसा नहीं करते। Stanza 3. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that the day? When did my childhood go? कभी इसमें ये प्रश्न करता है स्वयं से कि मेरा बचपन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या वो दिन था जब मैंने ये पाया कि मेरा मस्तिष्क जो है वास्तव में मेरा है, वो स्वयं का मेरा है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, मैं अपने मस्तिष्क का वैसे ही इस्तेमाल, जिस तरह से मैं चाहूं उस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। ये मेरा है, इस पर किसी का जोर नहीं है, इसमें मेरे विचार हैं और मैं अपने मस्तिष्क का वैसे ही इस्तेमाल कर सकता हूं जैसा मैं चाहता हूं। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वेर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, ऐसे विचारों को उत्पन्न करना, ऐसे विचार रखना जो दूसरों के नहीं हो, उसके स्वयं के हों, अपने हों। बट माई ओन एंड माइन अलोन, केवल मेरे हों और केवल मेरे हों। मेरे विचारों में किसी दूसरे की छाप नहीं होनी चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए, मेरे अपने विचार। Was that the day? क्या वो दिन था मेरा बचपन जब चला गया, जिस दिन मैंने माना कि मेरा मस्तिष्क मेरा है, उसमें मेरे अपने विचार हैं। क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था? In the third stanza, the poet deliberates on the same question about when he lost his childhood. He asked himself about possibilities. वो संभावनाओं की बात करता है। He wonders about the day he realized that his mind was his own and could use it the way he wants. वो कहता है कि शायद वो दिन था जिस दिन उसे एहसास हुआ कि उसका मस्तिष्क उसका स्वयं का है, उसमें उसके अपने विचार हैं और वो अपने विचारों का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे कर सकता है, जैसे वो चाहता है। When he realized that he could produce his own thoughts which were not bound by anyone, जब उसे एहसास हुआ कि वो अपने विचारों को उत्पन्न कर सकता है जिस पर किसी का भी जोर नहीं हो, किसी के कहने से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत उसके अपने विचार हों। When he sensed his own individuality and a separate personality, जब उसे एहसास हुआ कि उसका खुद का अपना व्यक्तित्व है
और उसका खुद का एक निजी जीवन है, एक व्यक्तित्व है। वॉज दैट द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ, क्या उस दिन उसका बचपन उसके पास से चला गया था, उसने अपने बचपन को खो दिया। Stanza 4. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. मेरा बचपन कहाँ चला गया? ये प्रश्न कवि के मस्तिष्क में वो ये सोचता है इस प्रश्न को कि मेरा बचपन कहाँ खो गया, जो इतना प्यारा था, सुंदर था, आकर्षक था। क्योंकि बच्चों, बचपन से प्यारा अच्छा कुछ नहीं है। बचपन जो है सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, और उसकी अपनी नजर होती है, वो अपनी नजरों से ही सारी घटनाओं को, जीवन को देखता है और ये प्रश्न करता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, और फिर उस बात पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि शायद उसका बचपन उससे दूर कहीं किसी अज्ञात जगह पे चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और संभवतः जो किसी बच्चे के, शिशु के नन्हे चेहरे में निहित है। अगर वो अपने बचपन को फिर से देखना चाहता है, पाना चाहता है, तो किसी शिशु, नन्हे शिशु को देखे, उसमें ही उसका अपना बचपन नजर आएगा। दैट्स ऑल आई नो, यही मैं जानता हूं। और इसी निष्कर्ष पर कवि पहुंचता है कि उसका बचपन अगर कहीं मिल सकता है तो वो किसी नन्हे शिशु के चेहरे में ही, उसकी हंसी में, उसकी किलकारियों में, उसकी मासूमियत में मिल सकता है। In the last stanza, the poet remorses about his lost childhood. He concludes that his childhood had gone to some forgotten place which will never come back. वो इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उसका बचपन किसी अज्ञात जगह पे चला गया है, जो फिर से वापस नहीं लौटेगा। He cherished his innocence which vanished now. इस बात पे जोर देता है कि उसका जो, उसकी मासूमियत उसके अंदर से चली गई। नाउ एंड कुड बी ओनली सीन इन ए बेबीज फेस, और केवल एक नन्हे से उसके चेहरे में ही वो दिखाई देगी अगर वो देखना चाहता है। ही ओनली हैज स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके पास केवल बचपन की प्यारी प्यारी यादें हैं। विच वुड सून फेड अवे, जो जल्द ही उसके अंदर से गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी। ही आल्सो कन्वेड ए मैसेज that the innocence of childhood stays till the time one is an infant and that is all he knows. और इस मैसेज को भी वो देता है कि बचपन की मासूमियत जो है वो तभी तक व्यक्ति के अंदर रहती है जब तक वो शिशु होता है, और उसके बाद उसके अंदर से चली जाती है। वो केवल इसी बात को जानता है। Literary devices used. Dear students, try and understand the literary devices. Rationalism. The poet rationalizes the lost childhood when he was 11 and when he found out that hell and heaven don't exist and are not found in the geography. इस बात को तर्क करता है कि उसने अपना बचपन खो दिया संभवतः जब वो 11 वर्ष का हुआ, और जब उसने पाया कि स्वर्ग और नर्क नामक जगहें इस धरा पर, इस भूमंडल पर नहीं है, तब शायद उसका बचपन चला गया। दिस इज रेशनलिज्म। Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Rhyme scheme. The rhyme scheme used in the poem Childhood is A, B, B, C, C, D. Refrain. A group of phrase which is repeated in the poem. ऐसा ग्रुप फ्रेज जो बार बार रिपीट की गई है। When did my childhood go? Was that the day? These are the repeated lines. Refrain. Dear students, understand the literary devices. Rationalism, refrain, rhyme scheme. Literary devices. Individuality. In stanza 3, the poet realized that he can use his own mind and can produce his own thoughts. He discovered a sense of individuality in himself. Stanza 3 में पोएट कभी इस बात को एहसास करता है कि अपने मस्तिष्क का अपने हिसाब से वो यूज कर सकता है, और उसके मस्तिष्क में उसके खुद के अपने स्वयं के विचार हैं, उसमें किसी दूसरे का असर नहीं है। उसे
अपने व्यक्तिगत होने का एहसास होता है. He discovered a sense of individuality in himself. Antithesis, where two opposite words are used together in a sentence in a poem, that is antithesis. Hell and heaven, for example, hell and heaven, where two opposite words are used together. Antithesis. Alliteration, the occurrence of the same letter of sound at the beginning of closely connected words. The time, my mind, whichever way, thoughts that. Alliteration. Inversion, when the subject verb order is reversed, that is called inversion. To use whichever way I choose. Inversion. Dear students, understand some vocabulary. Ceased, come to an end. Preached, talked or spoken. Infant, newborn baby. Dear students, thank you for watching the presentation of the poem Childhood. Thank you very much.